Hello, dear RBI Grade B aspirants, and welcome to EduTab. So, guys, we've started this series to cover all the chapters for your preparation for RBI Grade B Phase 1 exam for English language in the year 2026. The purpose of this series is to basically provide you free content for your preparation if you're preparing on your own, and this is to help you in your journey ahead to see what topics are important, how to cover, what are the important concepts of those chapters, and then what should be understood in every chapter. So guys, this will help you in your preparation and in your journey ahead, and this will definitely guide you in the right direction. But if you want to prepare on your own speed, and if you need all the practice material and all the support system that everyone needs for this for their preparation, now you can enroll in our courses and you can join us and streamline your preparation. The link for our courses is although given in the description of the video, but let me show you a very simple way of going about it. Now guys, you just need to visit your browser and type edutap.in. आप अपने ब्राउजर पे जाइए और टाइप करिए edutap.in and press enter, and you will land on our home page. Now this is our home page. Now you'll see all the courses that we offer available to you. Now the first tab is RBI Grade B courses. Now click on this and you'll be redirected to our RBI Grade B page. Now you'll see the courses available to you. We have test series for phase 1 and phase 2, and then we have a silver course for only phase 2 preparation. But this is a one-stop solution for all your needs. Now guys, this is the gold course for your RBI Grade B preparation. It includes everything from phase 1 to phase 2 to interview preparation, everything that you need from the very scratch. So it encompasses live classes for all the subjects for phase 1 as well as phase 2, concept classes in recorded forms, concept notes, summary sheets, mock tests, current affair magazines, solved previous year questions, chapter wise test for every subject, sectional mock test for both the phases, current affairs mock test, and then full length test for both the phases. So this is a one-stop solution for all your needs. And guys, we are offering special discount on these courses. You can use the coupon codes available here and you can avail the benefits of these courses. So guys, come join us, streamline your preparation. And guys, now let's begin with the chapter about our courses. Now let's begin with the topic, guys. So do you remember what prepositions are? Prepositions क्या होते हैं, याद है आपको guys? मैंने आपको कैसे सिखाया था? Prepositions, वो word जो आपको किसी की पोजीशंस बताते हैं, ठीक है। अब प्रेपोजिशन, एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, बेसिकली प्रेपोजिशन दो तरह की होती हैं गाइस. देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशंस एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, right? Now in many books you will find compound prepositions or something like that, but you can call it whatever you want. It doesn't make any difference, but you have to understand the difference between simple prepositions and complex prepositions. Now guys, what are simple preposition? सिंपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जो सिंगल वर्ड वाली जो हम यूज करते हैं, जैसे आई एम इन द किचन, तो एक वर्ड है जिसने बताया कि मैं कहाँ हूँ, किचन के अंदर, इन. शी इज एट होम, किसने बताया घर पे है, एट. ठीक है. द बैग इज ऑन द टेबल, किसने बताया टेबल के ऊपर है, ऑन. ठीक है. द शूज आर अंडर द बेड, किसने बताया बेड के नीचे, अंडर. तो ये जो सिंगल वर्ड वाले होते हैं ना गाइस, इनको हम बोलते हैं सिंपल प्रेपोजिशन. और फिर आती है आपकी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन. कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन क्या होती है, इनको ना कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन भी बोल देते हैं, या फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी बोल देते हैं, या फिर इनको कंपाउंड प्रेपोजिशन भी बोल दिया जाता है. ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन आपको समझ आना चाहिए. ये होती है गाइस वो प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड होती हैं. मतलब जैसे एग्जांपल देता हूं, इंस्टेड. इंस्टेड के साथ हम क्या यूज करते हैं हमेशा, ऑफ, राइट. तो ये जो इंस्टेड के साथ ऑफ, ये जो फिक्स हो गया है ना, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन के या फिक्स्ड प्रेपोजिशन के. ये इसके साथ सिर्फ यही प्रेपोजिशन यूज होता है. जैसे अकॉर्डिंग के साथ, हम अकॉर्डिंग के साथ क्या यूज करते हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू, राइट. अकॉर्डिंग फॉर बोलते हैं कभी, अकॉर्डिंग इन, अकॉर्डिंग बाय नहीं, सिर्फ अकॉर्डिंग के साथ क्या यूज होता है, टू. तो ये होते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, मतलब एक ही प्रेपोजिशन के साथ फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होती. तो इनमें आपको यही याद रखना होता है कि किसके साथ क्या लगता है, राइट. ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट टुडे वी विल बी लुकिंग एट सिंपल प्रेपोजिशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जानने से पहले सिंपल आना बहुत जरूरी है. तो सिंपल वैसे प्रेपोजिशन हमें आती हैं, काफ़ी हमें आती हैं, लेकिन कुछ हैं जो हमें शायद रिवाइज करनी होती है, हमें पढ़नी चाहिए अपने इस एग्जाम के लिए. तो वो प्रेपोजिशन आज डिस्कस करते हैं गाइस. तो सिंपल प्रेपोजिशन होती क्या है. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show its relation to some other word in a sentence. जैसे मैंने बोला, I
आई एम गोइंग टू लंदन। ठीक है, अब देखना गाइस, यहाँ पे आई एम क्या था, ये मेरा मैं सब्जेक्ट हूँ, एम मेरी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेरी एक्शन वर्ब है, और लंदन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन अब देखना गाइस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। किस वर्ड ने बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ, टू ने। तो ये होती है प्रेपोजिशन के एक नाउन का, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ शी इज एट होम, किस वर्ड ने बताया कि वो घर पे मौजूद है, वो घर पर लोकेटेड है, एट ने। तो ये शी का रिलेशनशिप समझा रहा है किसके साथ, होम के साथ। तो प्रेपोजिशन क्या होता है गाइस, जो वर्ड आपको किसी की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वर्ड। ठीक है, कि अब अनदर वर्ड क्या है यहाँ पे, होम, और ये पोजीशन किसकी बता रहे हैं, शी की। तो वो कहाँ पे है, घर पर है, किसने बताया, एट ने। तो ये होते हैं गाइस हमारे प्रेपोजिशंस। ठीक है, अब किस सिचुएशन में क्या प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको ना जितनी प्रेपोजिशन, जो सिंपल प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, सो दैट यू कैन रिवाइज एंड यू कैन रिटेन कि अच्छा इस सिचुएशन में ये यूज होता है, ये नहीं होता है। तो पहले शुरू करते हैं गाइस हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, वो प्रेपोजिशंस जो हम टाइम के लिए यूज करते हैं, समय के लिए यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला है एट। ठीक है, जैसे एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, आई वोक अप एट 5 AM टुडे। ठीक है, द बस अराइव्स एट 8:30, आई लीव एट 9 o'clock। तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। जैसे आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock, शी लीव्स हर हाउस एट 9 AM। दूसरा एट हम यूज करते हैं फेस्टिवल्स के लिए गाइस। अब देखना यहाँ पे शायद हम ऑन यूज करते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, लेकिन वो गलत होता है। आई विल कम होम ऑन होली या एट होली, शी विल कम बैक ऑन दिवाली या एट दिवाली, हम शायद ऑन दिवाली बोलते हैं, राइट, वो गलत होता है, हमें फेस्टिवल्स के लिए एट यूज करना होता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली माइट नो, माइट यू नो, यू माइट नॉट नो, और ये ऐसी चीजें जो आपको सीखने को मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो सेकंड प्रपोजिशन है इन। इन को हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं गाइस, सबसे पहला तो हम फॉर एनी पार्ट ऑफ डे, दिन के किसी समय के लिए, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, हम क्या यूज करते हैं, इन। लेकिन नाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। तो यहाँ पे सी लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर टाइम ऑफ नाइट, हम समय, रात के समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। जैसे एट 11 o'clock या एट 11 PM। ठीक है, तो रात के टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, एट। लेकिन दिन के टाइम के लिए हमें क्या यूज करना होता है, इन। क्योंकि देखो दिन को हमने 3 पहर में डिवाइड किया हुआ गाइस, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। लेकिन रात को हमने कहीं डिवाइड नहीं किया हुआ, रात पूरी रात होती है। तो इसलिए हम दिन के लिए हम क्या बोलते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून या इन द इवनिंग। लेकिन रात के लिए क्या बोला जाता है, एट नाइट। ठीक है, तो फॉर पार्ट्स ऑफ डे, ठीक है, सबसे पहले जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। फिर मंथ्स के लिए, कोई महीना हो, अच्छा, विद नून या एट मिडनाइट। ठीक है, नून या मिडनाइट जो होता है गाइस, वो रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे, वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो आई अराइव्ड एट नून या आई रीच्ड होम एट मिडनाइट। तो एट हम मिडनाइट के लिए, एट नून के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वो दिन का कोई वो नहीं है। तो इसलिए हम स्पेसिफिक 12 बजे के लिए हम एट नून या एट मिडनाइट यूज करते हैं। तो एट नून हो गया या एट मिडनाइट हो गया। लेकिन बाकी दिन के समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग। जैसे आई लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, आई वोक अप इन द मॉर्निंग टुडे, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। फिर महीनों के नाम के लिए, जैसे इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन 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 जनवरी। सीजन्स के लिए, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। या साल के लिए, इन 1992, इन 1947, इन 2025। तो दिन, महीने, सीजन और साल के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। इससे भी बड़ा, चाहे डेकेड के लिए भी गाइस, जैसे हम क्या बोलते हैं, इन द 1980s, इन द 1970s। तो डेकेड्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इन। और सेंचुरी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इन 19th सेंचुरी, इन 21st सेंचुरी। तो इसके लिए बड़े जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। और दूसरा हम इन यूज करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कब तक हो जाएगा, जैसे इन द फ्यूचर। ठीक है, जैसे फ्यूचर के लिए हम बोलते हैं कि इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। या जैसे आई विल बी बैक इन 10 minutes। तो आई विल बी बैक इन 10 minutes का मतलब क्या होता है गाइस, आई विल बी बैक इन 10 minutes मतलब मैं 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊंगा। तो विद इन अ ड्यूरेशन जब हमने बोलना होता है, ही विल बी बैक इन 1 hour। तो विद इन अ ड्यूरेशन,
जब आपने बताना होता है, जैसे आई विल बी बैक इन एन आवर, मतलब वो 1 घंटे, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर, पहले पहले 1 घंटे से पहले पहले आ जाएगा। योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड, एक तो हम क्या बोलते हैं देखना गाइस, योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों में अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, इन 2 वीक्स। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक डेट देनी होती है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, जैसे योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड बाय 10th ऑफ जून। तो बाय हम यूज करते हैं एक एग्जैक्ट एंड पॉइंट के लिए, लेकिन अगर हमने ड्यूरेशन बतानी होती है, ड्यूरेशन मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे विद इन ए ड्यूरेशन, के इतने समय के अंदर अंदर हो जाएगा। he'll be back in 10 minutes, you will arrive, the train will arrive in 15 minutes, या your product will be delivered in 10 days। तो 7 to 10 days, तो ये इन होता है ड्यूरेशन बताने के लिए, ठीक है। तो इनका टाइम में हम ऐसे यूज करते हैं इनको। मैं कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी बताता चल रहा हूँ गाइज आपको यहाँ पे ना, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। द लिंक फॉर विच हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एज वेल। चलिए गाइस आगे चलते हैं। हम ऑन कैसे यूज करते हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। ऑन हम यूज करते हैं फॉर डेज एंड स्पेसिफिक डेट्स, फॉर डेज ऑफ द वीक, जैसे ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, या कोई पर्टिकुलर डेट के लिए, ऑन 5th मार्च, ऑन 2nd सितंबर, ऑन 9th जुलाई, ऑन 1st जनवरी, राइट। तो डेज एंड डेट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन। ये बाय जो मैं आपको बता रहा था, बाय जो एंड स्पेसिफिक लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो हमने बताना है, जैसे द एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाय 5 PM, या योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड बाय 10th जून। तो बाय आपने क्या बता दिया, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमने लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बोलना होता है। कि जैसे जैसे मान लो आप घूमने के लिए निकलते हो घर से, मम्मी पूछते हैं कि बेटा कितने बजे तक घर आ जाओगे, आप बोलते हो आई विल बी बैक बाय 10 o'clock। बाय 10 o'clock का मतलब क्या हुआ, कि मैं 10 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फॉर और सिंस। ये मैंने आपको टेंसेज में आपने देखा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है ये। फॉर यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, या I have been working here for 2 years, कि मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, और सिंस यूज होता है जब आपने एक स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट बताना होता है कि कब से स्टार्ट हुआ है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग, सेम सेंटेंस में मैं क्या लिख सकता हूँ, आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2023। अब यहाँ पे सिंस क्यों यूज हुआ गाइस, देखो 2023 इज अ स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट, कि कब से यहाँ काम कर रहा हूँ, 2023 से। लेकिन जब मुझे ड्यूरेशन बतानी है कि कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, फॉर 2 years। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 1 hour, लेकिन आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 1 o'clock। फर्क समझना गाइस, फॉर 1 hour का मतलब क्या है, मैं 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, उसमें कोई स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट नहीं है, वो क्या है, ड्यूरेशन बता रहा है कितनी देर से। और मैं अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 1 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 1 o'clock। तो फॉर और सिंस हम ऐसे यूज करते हैं इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हम क्या यूज करते हैं, फॉर या सिंस, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, अच्छा फ्रॉम यूज करते हैं जब हमने एक स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट बताना होता है। जैसे आई आई वर्क फ्रॉम 9 AM टिल 6 PM, ठीक है। तो हमने स्टार्ट पॉइंट बताने के लिए हमने क्या बोला, 10 to 6 PM। तो स्टार्ट पॉइंट, जैसे द डॉक्टर इज अवेलेबल फ्रॉम 10 in the morning till 3 in the afternoon, the manager is available from 10 till 5, the bank is open from 10 till 5। तो जब आपने एक स्टार्ट पॉइंट बताना होता है, तब हम यूज करते हैं फ्रॉम। तो सर आपने वो स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए तो सिंस बताया था अभी, सिंस यूज होता है गाइस सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2023। लेकिन नॉर्मल सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं स्टार्ट पॉइंट बताने के लिए, फ्रॉम, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ, द क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 8 AM, या फ्रॉम 4 PM, ठीक है। तो जब द क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 8 PM, या द क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM, एट बोल देते हैं या स्टार्ट पॉइंट बताने के लिए, और एंड पॉइंट बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम के साथ टू, ठीक है। जैसे द बैंक स्टेज ओपन फ्रॉम 10 AM टिल या टू 5 PM। तो ये थे गाइस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं इनको। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, जो जगह के लिए यूज होते हैं। जैसे एट हम यूज करते हैं किसी जगह के लिए, आई एम एट होम, आई एम एट स्कूल, आई एम एट कॉलेज, आई एम एट वर्क। तो कहीं पे अपनी लोकेशन बताने के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट बता लो या अपनी लोकेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। जैसे द टूरिस्ट स्टेड एट द
tourist hotel. He studied at Oxford. He is waiting at the door. I am at home. I am at work. तो आई एम एट वर्क का मतलब क्या है, मैं काम पर मौजूद हूं, मैं काम पे हूं। ठीक है, तो अपनी लोकेशन, अपनी मौजूदगी, प्रेजेंस किससे बताते हैं हम? एट के साथ। इन हम यूज करते हैं लार्जर एरियाज के लिए, जैसे आई लिव इन चंडीगढ़, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन चेन्नई। ठीक है, तो बड़े एरियाज, आई लिव इन सेक्टर 32, आई लिव इन दिस सिटी, आई लिव इन दिस टाउन। तो बड़े एरियाज के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एट, जैसे आई एम एट होम, लेकिन आई लिव इन सेक्टर 32, आई लिव इन हाउसिंग बोर्ड, आई लिव इन डिफेंस कॉलोनी, या आई लिव इन चंडीगढ़, आई लिव इन दिल्ली। तो बड़े एरियाज के लिए क्या यूज किया जाता है? इन। बिटवीन यूज होता है। अब देखो, बिटवीन और अमंग, ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो बिटवीन और अमंग का बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इस बिटवीन यूज होता है दो लोगों या दो चीजों के लिए, सिर्फ दो एंटिटीज के लिए हम यूज कर सकते हैं बिटवीन। जैसे बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो शेयर दी स्वीट्स बिटवीन हिम एंड मी, उसके और मेरे बीच में, दो के बीच में। या इट्स अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। तो जब हम दो एंटिटीज की बात करते हैं ना, तो हम यूज करते हैं बिटवीन। लेकिन जब दो से ज्यादा एंटिटीज की हमें बात करनी होती है, फिर हम यूज करते हैं अमंग। ठीक है, अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्संस और टू थिंग्स। बट अब देखना, एक अमंग होता है और एक अमंगस्ट भी होता है गाइस। अमंग और एक अमंगस्ट भी आपने सुना होगा। अब अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस होता है? अमंग यूज होता है गाइस उन वर्ड्स के सामने जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे डिवाइड द स्वीट्स अमंग द थ्री बॉयज, अमंग के बाद क्या आ रहा है? द किससे स्टार्ट हो रहा है? टी से, विच इज अ कॉन्सोनेंट। तो अगर दो से ज्यादा की अगर हम बात करें तो हम क्या यूज करते हैं? अमंग। तो जैसे मैं बोलता हूं कि ही वॉज वेरी फेमस अमंग हिज स्टूडेंट्स, कि वो अपने स्टूडेंट्स में बहुत फेमस था। तो अमंग होता है इस इनके दरमियान। ठीक है, तो दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं अमंग। और एक अमंगस्ट यूज होता है इस कब? जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, लेकिन जब आगे आने वाला वर्ड किससे स्टार्ट होता हो? वॉवल से। तो अमंग कहाँ यूज होता है? जब आगे वाला वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। और अमंगस्ट कहाँ यूज होता है? जब आगे आने वाला वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो। जैसे डिवाइड द स्वीट्स अमंगस्ट अस। अब देखो, अस में पहला क्या है? वॉवल है यू, तो वॉवल साउंड वाला है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करते हैं? अमंगस्ट। तो ये डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस होता है अमंग और अमंगस्ट का। अच्छा, अबव, अंडर, बिलो और ओवर, ये समझना गाइस। अबव कब यूज करते हैं हम? जब हमें कंपैरिजन में बताना होता है कि इससे कंपैरेटिवली ऊपर। ठीक है, जैसे द सन रोज अबव द होराइजन। होराइजन पता है ना, वो जिसको हम बोलते हैं क्षितिज, जहां से हमें वो सूरज उगता हुआ दिखता है, जहां पे धरती और आसमान मिले हुए दिखते हैं दूर, है ना, उसको होराइजन बोलते हैं। तो द सन रोज अबव द होराइजन, उससे ऊपर उड़ गया था। वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम बादलों से भी ऊपर उड़ रहे थे। तो अबव यूज होता है गाइस कंपैरिजन के सेंस में। जैसे मैं बोलता हूं कि ही वर्क्स अबव यू, या दिस इज अबव योर पे ग्रेड, कि भाई तुम्हारे पे ग्रेड से ऊपर की बात है, तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। या ही वर्क्स अबव यू, मतलब हिरार्की में वो तुमसे पोजीशन में तुमसे ऊपर काम करता है वो। तो अबव यूज करते हैं गाइस हम कंपैरेटिव सेंस में, जब हमने ऊपर बोलना होता है। ठीक है, अंडर कब यूज करते हैं गाइस हम? जब हमने कोई चीज दूसरी चीज के वर्टिकली नीचे बोलनी होती है। कोई चीज दूसरी के, किसी दूसरी चीज के हाइट में, मतलब उसके नीचे है। जैसे द बॉल इज अंडर द टेबल, या द बैग इज अंडर द टेबल, द शूज आर अंडर द बेड। तो अंडर हम यूज करते हैं जब कोई चीज दूसरी चीज के वर्टिकली नीचे होती है, हाइट में, मतलब वर्टिकली नीचे। जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा था। तो हाइट में जब नीचे होता है ना, मतलब वर्टिकली नीचे जब आप होते हो किसी से, तब हम यूज करते हैं अंडर। बिलो देखना गाइस, अब जैसे अबव हम कंपैरिजन में यूज कर रहे थे ऊपर के लिए कंपैरेटिवली, ऐसे ही कंपैरिजन में नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिलो। बिलो इज यूज्ड फॉर लोअर देन कंपैरिजन में। जैसे व्हेन द सन सेट्स इट गोज बिलो द होराइजन, के वो क्षितिज के नीचे चला जाता है। योर वर्क इज बिलो एवरेज, तुम्हारा काम एवरेज से भी नीचे है, खराब है। ठीक है, दिस इज बिलो योर जैसे दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, तो 18 से नीचे की उम्र के। तो हम नीचे कंपैरिजन में हम बोलते हैं बिलो, और अंडर हम बोलते हैं जब कोई वर्टिकली नीचे खड़ा होता है। और ऊपर के लिए हम कंपैरिजन में क्या बोलते हैं? अबव। और वैसे अगर आपने ऊपर बोलना है तो हम क्या यूज करते हैं? देखना गाइस, ओवर। ठीक है, ओवर इज यूज्ड फॉर वर्टिकली अबव, जब कोई चीज वर्टिकली ऊपर है। जैसे देयर इज एन एयरक्राफ्ट कमिंग ओवर। ठीक है, या दिस इज ओवर योर
पे ग्रेड, दिस इज वो तो अबव होता है, दिस इज अबव योर पे ग्रेड। लेकिन हाइट में ऊपर, जैसे ही लिव्स इन द फ्लैट ओवर माइन, कि वो मेरे वाले फ्लैट से ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। तो हाइट में जब ऊपर बोलना है तो ओवर, हाइट में जब नीचे बोलना है तो अंडर। और अबव और बिलो कब, जब कंपैरिजन में हमें ऊपर या बताना है या नीचे बताना है। आई वांट टू बाय अ मोबाइल फोन बिलो 10,000 या बिलो 20,000 रुपीज, तो वो हुआ कंपैरिजन में नीचे। लेकिन अंडर क्या हुआ, हाइट में नीचे। सिमिलरली हाइट में ऊपर होगा तो ओवर, जैसे द बॉल वेंट ओवर द बाउंड्री, या द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल, तो मतलब ऊपर से। ठीक है, तो वो होता है हाइट के लिए। लेकिन कंपैरिजन में हम क्या यूज करते हैं, अबव एंड बिलो। तो ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर अबव और बिलो और अंडर एंड ओवर में क्या फर्क होता है। तो आज समझ आ गया, अबव और बिलो यूज होता है कंपैरिजन के लिए, जबकि अंडर एंड ओवर यूज होता है हाइट के लिए। समझ आ रही है चीज। अच्छा, फिर एक आता है बिनीथ, बिनीथ और एक इसके साथ अंडरनीथ भी होता है, ये दोनों सेम होता है। बिनीथ और अंडरनीथ कब यूज होता है, जब कोई चीज दूसरी चीज के नीचे दब जाती है। ठीक है, जैसे कारपेट के नीचे छुप कोई चीज दब गई, जैसे द पेपर वॉज लाइंग अंडर द कारपेट, या जैसे बिल्डिंग गिर जाती है अर्थक्वेक में, सो मेनी पीपल वर स्टक बिनीथ द रबल या अंडरनीथ द रबल। तो मलबे के नीचे लोग दबे हुए थे। तो नीचे दब जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिनीथ या अंडरनीथ। जैसे द ग्राउंड वॉज स्लिपरी बिनीथ हर, उसके पैरों के नीचे जो फर्श था वो बड़ा फिसलना था, स्लिपरी था। तो ऐसे यूज करते हैं हम गाइस प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टू हम यूज करते हैं। सबसे पहला टू, टू हम यूज करते हैं जब हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द सिनेमा हॉल, आई एम गोइंग टू द शॉपिंग सेंटर। तो कहीं भी आपने जाना होता है, वहां जाने के लिए, मतलब अपनी मूवमेंट शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू। ठीक है, लेकिन ये याद रखना गाइस, टू हम किसके साथ यूज नहीं कर सकते, एक तो होम के साथ और एक अब्रॉड के साथ। ठीक है, क्योंकि होम और अब्रॉड कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है। आई एम गोइंग टू होम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग टू अब्रॉड नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग अब्रॉड। हाँ, आई एम गोइंग टू अमेरिका होगा, आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम गोइंग टू चाइना, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई एम गोइंग टू कनाडा, लेकिन वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है। लेकिन ये बोलना आई एम गोइंग टू अब्रॉड, ये गलत होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, होम और अब्रॉड के साथ हम टू यूज नहीं करते। होम क्यों नहीं करते, क्योंकि होम हमारी घर की लोकेशन होती है, वहां से हम हर जगह जाते हैं। होम तो वो है जहां आप रहते हो। तो घर से ऑफिस फिर घर, घर से मार्केट फिर घर, घर से शॉपिंग सेंटर फिर घर। तो घर तो आप रहते हो, तो घर कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। तो इसलिए हम होम और अब्रॉड के साथ टू यूज नहीं करते। बाकी आपने कहीं भी जाने की मूवमेंट शो करनी है तो आप क्या बोलते हो, टू। वी वॉक टू द रिवर एंड बैक, वी आर गोइंग टू कॉलेज, वी आर गोइंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू अमेरिका। तो मूवमेंट कहीं जाने के लिए यूज करते हैं टू। अच्छा, टुवर्ड्स यूज होता है जब आप किसी दिशा में बोलते हो। जैसे ही सॉ मी रनिंग टुवर्ड्स हिम, उसने मुझे अपनी तरफ आते हुए देखा। शी ग्लांस टुवर्ड्स द मिरर, के उसने शीशे की तरफ नजर घुमाई। तो किसी की दिशा में, टेक 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द वॉल, 5 कदम दीवार की तरफ कदम बढ़ाओ। तो जब आप किसी की दिशा में बात करते हो तो हम यूज करते हैं टुवर्ड्स। अच्छा, इनटू कब यूज होता है गाइस, इनटू हमने यूज करना छोड़ ही दिया है। हाँ जी, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं देखा फर्क समझना गाइस, अगर ग्लास में पानी है तो मैं क्या बोलूंगा, देयर इज वाटर इन द ग्लास। ठीक है, इन मतलब ऑलरेडी अंदर है। लेकिन जब मुझे ये बोलना है कि ग्लास में पानी डाल दो, तो मैं क्या बोलूंगा, पोर वाटर इन द ग्लास या पोर वाटर इनटू द ग्लास। अब हम यहाँ पे हम इनटू यूज नहीं करते। प्लीज पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, शी जम्प्ड इनटू द लेक। तो बाहर से अंदर आने की मूवमेंट को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनटू। ही जम्प्ड इनटू द वेल, द बॉयज जम्प्ड इनटू द लेक, शी फेल इनटू अ डिच। तो बाहर से कहीं सी चीज के अंदर जाने की, जैसे ही वॉकड इनटू द रूम, शी केम इनटू द रूम। ठीक है, हाँ, एंटर के साथ याद रखना गाइस, ये एक्सेप्शन आपको बताता चल रहा हूं। एंटर के साथ नाप इन यूज कर सकते, नाप इनटू यूज कर सकते, क्योंकि एंटर का मतलब ही क्या होता है, अंदर आना। सो व्हेन द पुलिस एंटर्ड इन द रूम, व्हेन द पुलिस एंटर्ड इनटू द रूम, या व्हेन द पुलिस एंटर्ड द रूम। तो एंटर के साथ याद रखना गाइस, ना इन यूज किया जाता है ना ही इनटू यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एट हम जब डायरेक्शन के सेंस में बोलते हैं तो किसी की तरफ पॉइंट करना, जैसे शी वॉज एमिंग एट मी, दे वर लाफिंग एट मी, शी वॉज लुकिंग एट मी।
ही वॉज स्माइलिंग एट मी। तो एट होता है किसी की दिश, मतलब किसी की तरफ देखकर, या किसी की पर्टिकुलर इंसान की तरफ, जैसे ही एम्ड एट द बर्ड, किसी पे निशाना लगाना। तो निशाने को या किसी की पर्टिकुलर को पिन पॉइंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। जैसे ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा था। अब तरफ तो हम टुवर्ड्स भी बोलते हैं, ही वॉज लुकिंग टुवर्ड्स मी या एट मी। टुवर्ड्स होता है किसी दिशा में, लेकिन मेरे पर्टिकुलर पिन पॉइंट कर दूं कि वो मेरी तरफ या वो दीवार की तरफ देख रहा था, ही वॉज लुकिंग एट द वॉल। तो एट होता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ एम करते हो, पिन पॉइंट कर देते हो उसको, ठीक है। अच्छा, फॉर हम यूज करते हैं डायरेक्शंस के लिए। जैसे आई विल लीव फॉर पुणे टुडे, आज मैं पुणे के लिए निकल रहा हूँ। द मिनिस्टर लेफ्ट फॉर द यूके, के जो मिनिस्टर थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स यूके के लिए निकल चुके हैं। तो कहीं पर्टिकुलर जगह जाने के लिए, आई लेफ्ट फॉर वर्क एट 9 AM। आई एम आई जैसे आई एम गोइंग टू वर्क होता है, लेकिन आई लेफ्ट फॉर, तो लीव के साथ हम क्या यूज करते हैं गाइस, लीव फॉर या लेफ्ट फॉर, ठीक है। ही लेफ्ट फॉर द वर्क या ही लेफ्ट फॉर ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। वी लेफ्ट फॉर दिल्ली, ये लास्ट नाइट, कि हम कल रात को दिल्ली के लिए निकले थे। तो के लिए, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए आप निकलते हो, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, लीव फॉर, ठीक है। चले गाइज, अगेंस्ट, जब आप किसी के सहारे लग के या किसी के साथ खड़े होते हो, जैसे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। शी क्लीन्ड द एज ऑफ हर नाइफ अगेंस्ट द प्लेट, प्लेट के किनारे के साथ। ही लीन्ड अगेंस्ट अ ट्री, वो एक पेड़ के सहारे लग के खड़ा होना। तो जब किसी के सहारे लग के आप होते हैं ना, उसको बोलते हैं अगेंस्ट। अच्छा, ऑफ हम यूज करते हैं गाइज, ऑफ होता है ऑन का ऑपोजिट। जैसे इन का ऑपोजिट क्या होता है गाइज, कम इन द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। तो इन का ऑपोजिट आउट होता है। ऐसे ही याद रखना, ऑन का ऑपोजिट ऑफ होता है। टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ये तो सुना ही होगा आपने। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ, गेट इन द कार, गेट आउट ऑफ द कार, गेट ऑन द बाइक, गेट ऑफ द बाइक, पुट ऑन अ जैकेट, टेक ऑफ अ जैकेट। तो उतारना, मतलब किसी के ऊपर से हटाना, उसको हम बोलते हैं ऑफ। ऑफ को यूज करते हैं सेपरेशन। जैसे ही वाइप्ड द स्वेट ऑफ हिज फेस, कि उसने अपने चेहरे से पसीना पूंछा। किम फेल ऑफ हिज चेयर, किम अपने चेयर से गिर गई, ठीक है। फ्रॉम यूज करते हैं, अच्छा नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ डिपार्चर के लिए। जैसे द मैन पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से अलग हुआ। वी स्क्रैम्बल्ड फ्रॉम आवर ट्रक्स एंड रैन आफ्टर देम, हम अपने ट्रक से निकले और दौड़े। तो वी आई लेफ्ट फ्रॉम होम, ठीक है। आई लेफ्ट फ्रॉम होम जस्ट 10 minutes अगो, मैं अभी घर से 10 मिनट पहले निकला हूँ। तो स्टार्ट पॉइंट, जैसे हम बता रहे थे ना, टाइम में भी हमने किया था, टाइम के लिए हम स्टार्ट पॉइंट हम किससे बताते थे, फ्रॉम से। जैसे दिस बस विल ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फ्रॉम दिल्ली स्टार्ट पॉइंट है उसका। तो स्टार्ट पॉइंट बताने के लिए, पॉइंट ऑफ डिपार्चर बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो स्टार्ट पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर हम किससे बताते हैं, फ्रॉम से, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन के लिए यूज होते हैं। जैसे अबाउट, अबाउट हम यूज करते हैं जब कोई काम होने वाला होता है, ठीक है। जैसे आई एम अबाउट टू लीव, आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड, हिज फादर इज अबाउट टू रिटायर, रिटायर होने वाले हैं। तो अबाउट कब यूज करते हैं, जब कोई काम नियरनेस पे, काम होने वाला होता है। द क्लास इज अबाउट टू एंड, द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। तो अबाउट टू हम यूज करते हैं जब कोई काम शुरू होने वाला होता है। अलोंग, अलोंग होता है साथ साथ, पैरेलल किसी चीज के। जैसे शी वॉज वॉकिंग अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर के पैरेलल चल रही थी। शी लेट दम अलोंग द कॉरिडोर, हाँ। द करंट पासिस अलोंग द वायर, मूव अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चलना, इधर उधर मत जाना। तो अलोंग होता है उसके पैरेलल चलना। आफ्टर, ये तो हमें पता है, आफ्टर होता है बाद में, बिफोर होता है पहले। इतना तो सीधे बहुत सिंपल है। शी केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आई, या सून आफ्टर, उसके थोड़ी देर बाद। फैराडे बिगैन इज रिसर्च इनटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बाद के लिए हम बोलते हैं आफ्टर, टाइम में भी और पोजीशन में भी। और बिफोर के लिए हम यूज करते हैं, पहले के लिए हम यूज करते हैं बिफोर, टाइम में भी और पोजीशन। जैसे बिफोर 10 o'clock, या ही केम बिफोर मी। तो बिफोर और आफ्टर पहले और बाद में। अक्रॉस का मतलब क्या होता है गाइस, एक साइड से दूसरी साइड जाना। जैसे ही रैन अक्रॉस द पार्क, या अक्रॉस द ग्राउंड, अक्रॉस द फील्ड, कि वो इस कोने से उस कोने तक। अक्रॉस द कंट्री, कि देश के इस कोने से उस कोने तक। तो अक्रॉस होता है गाइस एक एंड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना। जैसे ही थ्रू द बॉल अक्रॉस द रूम, कि रूम के इस कोने से उस कोने तक उसने बॉल फेंकी। आई कैन हियर यू अक्रॉस द हॉल, कि हॉल के उस कोने से लेके इस कोने तक मैं आपको सुन सकता हूं। तो ही ब्लू अ क्लाउड ऑफ स्मोक अक्रॉस द टेबल, टेबल के इस कोने, इस कोर पार से उस पार। शी रैन अक्रॉस द फील्ड, के इस फील्ड के इस पार से उस पार जाने को हम बोलते हैं अक्रॉस। अच्छा, बिफोर होता है पहले, ये तो हमने बता दिया, बिफोर पहले।
जैसे द थीफ वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, द गराज इज बिफोर द रोड, उससे पहले आना या उसके सामने। बिहाइंड होता है किसी के पीठ पीछे, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ही, या किसी चीज के पीछे, ही हिड बिहाइंड द ट्री या शी हिड बिहाइंड द डोर, तो बिहाइंड होता है पीछे, शी सैट डाउन बिहाइंड द हेज, द सन वेंट बिहाइंड अ क्लाउड, के बादल के पीछे छुप जाना। बियॉन्ड होता है गाइस कि किसी चीज से परे होना, किसी चीज की लिमिट है, लिमिट से भी परे होना, जैसे दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। तो बियॉन्ड होता है मतलब जो मतलब हद पार हो जाती है, जैसे दिस इज बियॉन्ड हिज पावर, या लव इज बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंट्रोल, मतलब उससे परे है, उसको हद पार हो चुकी है उसकी। तो बियॉन्ड द होराइजन मतलब उससे भी आगे, उससे भी दूर, उसको बोलते हैं बियॉन्ड। अच्छा, नेक्स्ट है गाइस बिसाइड एंड बिसाइड्स। इसमें कई बार गलतियां बनती हैं एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़ना। बिसाइड होता है किसी के साइड में, जैसे शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, कि वो मेरे बगल में बैठी थी, ठीक है। तो बिसाइड होता है गाइस साइड में होना, द माई कार इज पार्क्ड बिसाइड योर्स, कि मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के बगल में पार्क्ड है। आई सैट डाउन बिसाइड माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ के साइड में बैठ गया। तो बिसाइड होता है गाइस बगल में होना। जबकि बिसाइड्स क्या होता है गाइस, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, बिसाइड से कंजंक्शन होती है, ये प्रेपोजिशन नहीं होती। लेकिन मैं आपको दोनों क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनमें कई बार गलती हो जाती है, आंखों के नीचे से स्किप हो जाती है ये। तो आज के बाद बिसाइड और बिसाइड्स कभी भी आपको लिखा दिखे, जरूर चेक करो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। बिसाइड इज ए प्रेपोजिशन, जबकि बिसाइड्स इज ए कंजंक्शन। जैसे बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, के टीचर होने के साथ साथ ही इज अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, वो एक क्राफ्ट्समैन भी है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ बिसाइड्स रोहित एवरीवन इज प्रेजेंट इन द रूम, कि रोहित के साथ साथ हर कोई रूम में मौजूद है। तो बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, उसके साथ साथ, जबकि बिसाइड होता है बगल में होना, साइड में होना। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस पे एग्जाम में बहुत बार गलतियां बनती हैं, और ये एग्जाम। So guys, I hope you've understood each and every component of this chapter, and I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. So do leave a comment in the comment section of the video, and do let us know your experience about these videos, and do share if we can improve them by any means. Guys, if you wish to join us now, if you've understood the quality that we provide, the content that we have in our courses, so if you wish to join us in our courses, there is a very simple way of going about it, and we are offering special discounts on our courses. Now guys, what you have to do is, although the link is given in the description of the video for our courses, but I'll show you a very simple way of going about it. You just have to visit your browser, any browser, Google or any browser that you have, and just type edutap.in, EDUPATAP, edutap.in, and just press enter and you'll land on our homepage. You'll see all the courses available to you here. Just click on the RBI Grade B courses and you'll see all the courses for RBI Grade B available to you. Now guys, we have a test series for phase 1 plus phase 2, as well as special test series for phase 2. So this is for those aspirants who are done with their preparation. But if you are starting with your preparation now, you have your silver course for phase 2 plus interview preparation. You have your live classes, concept notes, summary sheets, mock tests and interview sessions for only phase 2, only for phase 2 and interview. But guys, if you're starting out from the from the very beginning, this is what you need. Gold course. This includes everything for your phase 1 as well as phase 2 plus your interview. So it includes all the live classes, concept notes, summary sheets, mock tests, current affair magazine, solved PYQs, chapter wise mock test, sectional test, current affairs mock test, full length test, interview preparation, and everything that you need to prepare for your exam, along with your doubt and query resolution. All your queries are resolved within 24 hours. So we are offering special discounts on these courses. Come explore your discounts, join us and streamline your preparation with us. And if you face any difficulty, any challenges regarding anything at all, please feel free to call us on this number, which is 8146207241 on your screen, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So guys, we wish you all the very best for your preparation. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So have a good day and happy learning to all of you.